جب میری امی زندہ تھی تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، اب میری ماں مر گئی، انتقال کر گئے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اگر تم کنواں کھدوا دو اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے تو یہ تمہاری طرف سے تمہاری ماں کی خدمت ہوگی، یعنی جیتے جی کھانا کھلاؤ، جیتے جی دوا پلاؤ، جیتے جی پیر دباؤ، اور جب انتقال کر جائے تو ایسی نیکیاں کرو ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کہ قبر کے اندر وہ سکون اور اطمینان کی نیند سوتے رہے اور ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ تو کہا کہ اگر آپ کنواں کھدوا دیتے ہو، پانی کا انتظام کرا دیتے ہو، یہ تمہاری ماں کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس صحابی نے جو ہے کنواں کھدوایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے چلیں اور وہ پانی پہلے آپ ہی پیئیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے وہ سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ تیری ماں کو ملے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ چلیں، آپ پانی پیئے، اور پھر آقا کو وہ لے گئے، حضور نے اس کا پانی پیا اور فرمایا یہ کنواں ام سعد کا ہے، یعنی سعد کی ماں کا ہے۔ حضور نے کہا فرمایا سعد کی ماں کا ہے، یعنی اس سے جو پانی پیا جاتا رہے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کی ماں کو۔ ایسی مسجد بنا دیا، جب تک نمازیں ہوتی رہے گی جس کے ایصال ثواب کے لیے بنایا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے راستہ درست کروا دیا جس کے ایصال ثواب کے لیے کیا، اسی طرح شربت پلا دیا، کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کی مدد کر دی، یہ سب ایصال ثواب کے ذریعے ہے۔ اب یہاں ایک خاص بات، کچھ لوگ زبردستی کے متقی بنتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ان کا کھانا کھلا سکتے ہیں، مردوں کی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، شربت پلا سکتے ہیں، لیکن اس کو مالدار لوگ نہیں کھا سکتے، اس کو جو وہ صرف غریب لوگ کھا سکتے، مالدار نہیں کھا سکتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ غریب کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور کے پاس دولت بہت تھی۔ کتنی دولت تھی؟ پوری کائنات تو انہی کی دولت ہے۔ آقا فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر کے چلیں۔ حضور علیہ السلام لاکھوں لاکھ روپیہ روزانہ جو ہے غریبوں میں تقسیم فرماتے تھے، لوگوں کو تحائف پیش کرتے تھے۔ یہ جو ہے وہ سب حدیث پاک میں موجود ہے، سیرت میں موجود ہے، لیکن جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے وہ اختیاری طور پر تعلیم امت کے لیے باندھتے تھے۔ اب جناب سعد نے اپنی ماں کے لیے جو کنواں کھدوایا، حضور سے کہا کہ پہلے آپ اس کا پانی پیئیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ نے اس کا پانی پیا، تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ اگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا بنایا جائے تو اس میں غریب بھی کھا سکتے ہیں اور امیر بھی کھا سکتے ہیں۔ غریب کے کھانے پر بھی ثواب ہے اور امیر کے کھانے پر بھی ثواب ہے، مگر افضل یہ ہے کہ اولیت پہلے غریبوں کو دی جائے اور بعد میں پھر مالداروں کا جو ہے وہ ان کو اس کے لیے چنا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مالداروں کو اولیت دیتے اور غریبوں کو اولیت نہیں دیتے، بلکہ یہ صرف ایصال ثواب کے کھانے میں ہی نہیں ہے، یہ تو ولیمے میں بھی ہے کہ اولیت غریبوں کو دو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولیمے کی سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اگر آپ ولیمے کی دعوت کریں تو اس میں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے غریبوں کو شامل کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ ایصال ثواب ہے۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، دھیان دیں آپ، یہ جو عربی میں جسے ایصال ثواب کہتے ہیں اس کو اردو میں ہم کبھی تیجا کہہ دیتے ہیں، ہے ایصال ثواب تیجا۔ ہم کبھی اس کو 10واں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی 20واں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی چہلم کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی 11ویں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی 6ٹھی کہہ دیتے ہیں غریب نواز کی، کبھی 12ویں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی مولانا اسحاق کی نیاز کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی غلام نبی بابا کا عرس کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی مخدومی لنگر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، کبھی بھنڈارا کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے سب ایصال ثواب، نام بدل گئے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتے ہیں یہی بات ہوئی۔ دیکھیے آسمان سے جو پانی برستا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ ہے کیا؟ پانی، لیکن برسا تو کیا کہا؟ بارش۔ نالے میں بہنے لگا ہے پانی، کیا کہا؟ نالا۔ کیا کہا؟ وہی پانی ندی میں آ گیا تو کیا کہا؟ ندی۔ وہی پانی کنویں میں آ گیا تو کیا کہا؟ کنواں۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ پانی سمندر میں چلا گیا تو ہے پانی، ہے پانی۔ پانی کے بغیر کنواں نہیں ہے، پانی کے بغیر سمندر نہیں ہے، پانی کے بغیر بارش نہیں ہے، سب جگہ ہے پانی ہی، لیکن جہاں جاتا رہا نام بدلتا رہا، حقیقت نہیں بدلی، ہے پانی ہی۔ برسا تو بارش، کنویں میں گیا تو کنواں، دریا میں گیا تو دریا، سمندر میں گیا تو سمندر، نام بدلے لیکن ہے پانی، تو ہوگا پانی ہی، لیکن نام بدلتے جائیں گے
इसाले सवाब, ये अब बताएं कि ये कहाँ नाजायज, किसी को सवाब पहुंचाना ये कहाँ नाजायज, किसी को सवाब इसाल करना ये कहाँ हराम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए अपनी गुफ्तगू को एंड करते हुए समझ में अगर बात आ गई है आपके, हमारे बुजुर्गों ने बहुत किया और अल्लाह को इसाले सवाब की खातिर खाना खिलाने से ज्यादा कोई अमल पसंद नहीं। सबसे बेहतरीन अमल खाना खिलाना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह अकबर, किसी का हाल ये है कि माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचाए, माँ बाप को अजियत दे और कभी उसके माथे पे शिकन भी ना आए। याद रखना, गुनाहों में ये बहुत बड़े गुनाहों में शामिल होता है। ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, माँ बाप का दिल दुखाना, माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचाना। आज के नौजवान लड़के और लड़कियां माँ बाप को सदमे देते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं। सुन लो, किसी की भी बद्दुआ रायगा नहीं जाती, किसी की भी। अगर जानवर भी बद्दुआ दे तो जानवर की बद्दुआ भी आज नहीं तो कल लग कर रहती है। लेकिन सबसे पावरफुल दुनिया में अगर किसी की दुआ और बद्दुआ है तो उसको माँ बाप कहते हैं। दुनिया में किसी की दुआ में इतनी ताकत नहीं, ना दुआ में इतनी ताकत है, ना बद्दुआ में इतनी ताकत है जितनी माँ बाप की दुआ और बद्दुआ में ताकत है। इसलिए इनकी दुआ लेते रहना, इनकी बद्दुआ से बचना। माँ बाप कभी जबान से जल्दी से बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि जबान पर इंसान का कंट्रोल है और माँ बाप को तो जबान से बच्चों को बद्दुआ देना भी नहीं चाहिए, लेकिन दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जब दिल दुखता है तो दिल से आह निकलती है और आह निकलती है तो ये आह कई बादशाहों को बर्बाद करके उनको फकीर बना देती है, उनको भिखारी बना देती है। ऐसे ही जब दिल से दुआ निकलती है तो कई भिखारी बादशाह बन जाते हैं। आज मैं अब चंद गुनाहों का जिक्र करूंगा और बात इख्तिताम को पहुंचेगी, लेकिन तमाम भाइयों से और बहनों से मेरी गुजारिश है कि दिल के कानों से सुनिए। आज जो है हम लोग सोचते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएं, हमारी बिगड़ी बन जाएं, तो कभी हम इमाम साहब के पास जाते हैं, कभी पीर साहब के पास जाते हैं, कभी आलिम साहब के पास जाते हैं, कभी आमिल साहब के पास जाते हैं, कभी किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे जाते हैं ताकि हमारे मसाइल हल हो जाएं। लेकिन ऐ खड़कवानी वालों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप बहुत पावरफुल दुआ चाहते हैं तो आप किसी और के पास जाएं या ना जाएं ये आपकी मर्जी है। आप अपने माँ बाप के पास जाएं, इसलिए कि आपके माँ बाप की दुआ आपके हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआ को नबी की दुआ का दर्जा दिया गया है। इनकी दुआ भी तीर की तरह जाती है और इनकी बद्दुआ भी तीर की तरह जाती है। मैं आज बहुत दुखी दिल के साथ कहता हूं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात को हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे क़यामत सर पे खड़ी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो क़यामत की निशानियों में से निशानी बताई थी, उनमें से एक निशानी ये थी कि औलाद अपने माँ बाप को गुलाम बना करके रखेंगे, औलाद अपने माँ बाप को गुलाम बना कर रखेंगे। देखो वो वक्त आ गया, आज जवान औलाद के आगे माँ बाप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, बल्कि माँ बाप डरते हैं कि मेरा बेटा क्या कहेगा। घर में माँ बाप को डरा डरा कर रखने वालों, मेरे आका ने फरमाया माँ बाप को गुलाम बना के रखा जाएगा, लेकिन ऐसी औलाद कभी तरक्की नहीं पा सकती। और फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, लोग अपने दोस्तों पर खुशी खुशी खर्चा करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप पे खर्चा करने की बात आएगी तो उनके दिल सुकड़ जाएंगे, उनके दिल छोटे हो जाएंगे। बोलो ये है कि नहीं है? अगर चार दोस्त किसी जो है वो कॉफी पीने के लिए कहीं पर बैठे तो हर आदमी जेब में हाथ डालता है, यार कॉफी का पैसा मैं दूंगा, कॉफी का पैसा मैं दूंगा। और अगर चार बेटे हैं और बाप बीमार पड़ा है तो कहता है कि हॉस्पिटल का पैसा तू पे कर, हॉस्पिटल का पैसा तू पे कर। दोस्तों की महफिल में पार्टियों का पैसा पे करने के लिए झगड़ा करते हो, और घर में माँ बाप बीमार पड़ जाएं तो उनकी दवा का पैसा देने में घर में झगड़ा करते हो कि तू देगा क्या तेरा बाप नहीं, क्या तू देगा तेरा बाप नहीं। सुन लो, अल्लाह अकबर, बेहतरीन औलाद वो है जो अपने पैसों को अपने माँ बाप पे खर्च करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हज करने से वो सवाब नहीं मिलता, मस्जिदें बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, मदरसे बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, जो माँ बाप पे खर्चा करने पर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। सबसे ज्यादा हमारे पैसों का अगर कोई हकदार है कि उस पे खर्च किया जाए तो वो हमारे माँ बाप है। ये जब तक जमीन के ऊपर
ऊपर हैं, इनकी दुआएं ले लो। इनकी दुआएं चोर और डाकुओं को वली बना देती है और इनकी बद्दुआ वलियों को विलायत के मकाम से गिरा दिया करती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह अकबर, उलमा के अंदर साहिबे तफसीर कशाफ अल्लामा ज़मख़शरी, ये तफसीर कशाफ के मुसन्निफ अल्लामा ज़मख़शरी, अगरचे ये अकीदे के एतबार से बाद में मुअतज़िली हो गए थे, लेकिन बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं। इनकी इल्मी सलाहियतों का तस्करा अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी कुतुब में मौजूद। बड़े बड़े औलिया के बच्चे इनकी तफसीर पढ़ते थे। ज़मख़शरी बड़े मुसन्निफ, बड़े आलिम, आखिरी उम्र में उनका पैर काटना पड़ा था और वो एक पैर से लंगड़े हो गए थे। एक पैर से वो लंगड़े हो गए थे, पैर काटना पड़ा था। जब उनसे किसी ने पूछा, आप बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम, आपका पैर कट गया, तो आप कहते थे मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। अल्लाहु अकबर। ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। माँ बाप की बद्दुआ लेने वालों, इतना बड़ा आलिम कह रहा है कि मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। अब बद्दुआ क्यों मिली? माँ को नहीं सताया था। कैसे बद्दुआ मिली माँ की? आपके घर में तो बड़ा इस्लामी माहौल था, माँ ने क्यों बद्दुआ दी? तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि एक दिन मेरे बचपने में मैं चिड़िया से खेल रहा था। चिड़िया के पैर में मैंने धागा बांधा था और चिड़िया से खेल रहा था। आज अलग अलग खेल है, उस ज़माने में तो ऐसे कोई खेल नहीं थे, तो बच्चे चिड़िया से खेलते थे, जानवरों से खेलते थे। तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं मैं चिड़िया से खेल रहा था, मैंने डोरा बांधकर चिड़िया को उड़ाया। अब चिड़िया उड़ती तो मैं डोरा पकड़ लेता, खींचता, चिड़िया नीचे आती, फिर छोड़ता, फिर वो उड़ती, फिर खींचता। मुझे मज़ा आ रहा था। मेरी माँ करीब में कुछ काम कर रही थी। ऐसे में चिड़िया वो निकली, उड़ते हुए अपने घोंसले में चली गई। जब घोंसले में गई तो उसने घोंसले की जो लकड़ियाँ हैं उसको पकड़ के बैठ गई। मैं बच्चा था, खींचता रहा, मैंने खींचा तो उसकी टांग निकल आई। अल्लाहु अकबर। चिड़िया की टांग निकल आई। मैं टांग को देख के घबराया तो माँ की मुंह से निकला, बेटा जैसे तूने इसकी टांग तोड़ दी, तेरी टांग भी टूट जाएगी। माँ की जबान से निकल गई। हालांकि माँ का दिल नहीं दुखा, माँ को सताया नहीं उन्होंने। जैसे आमतौर पे नॉर्मल बातें होती थी, बस वो बात हो गई। हम कहते हैं ना, जैसे कोई कुत्ते को सताए तो जैसे तू इसको सता रहे, तू सताया जाएगा। कभी हम समझाने के लिए भी कुछ कहते हैं, तो माँ ने कहा तूने इस परिंदे की टांग तोड़ी, तेरी टांग भी टूट जाएगी। ज़मख़शरी कहते थे ये मेरी माँ के मुंह से निकले हुए जुमलों का असर है कि बुढ़ापे में मेरी टांग टूट गई, मेरा पैर टूट गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज कमा कर लाते हैं, माँ बाप से छुपाते हैं, कमा कर लाते हैं, माँ बाप से बचा बचा के रखते हैं। मैं सोचता हूँ वो कैसे दिन थे। जो औलाद अपनी माँ बाप की ना हो, वो कायनात में किसी के साथ वफा नहीं कर सकती। कायनात का बदतरीन बेवफा इंसान वो है जो अपने माँ बाप के साथ बेवफा करे। मैं कहता हूँ वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपनी जवानी में कमाया हमारे लिए, जमाया हमारे लिए, हम बीमार पड़े तो डॉक्टरों के पास जाकर के कहा, डॉक्टर मेरी पूरी जिंदगी की दौलत अगर खर्चा करना पड़े तो मैं खर्चा कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। और जब वो माँ बाप बीमार पड़े तो हम उनको कहते हैं बस करो, मैं तुम पे कितना खर्च करूं, क्या मेरी औलाद नहीं है कि मैं अपनी औलाद का मुस्तकबिल न देखूं, सब कुछ तुम्हीं पे खर्च कर दूं। हाय अगर कल तेरे माँ बाप ने तेरे लिए ऐसा सोच लिया होता तो तुझे कौन बचाता? सोचो तो सही, माँ बाप के एहसानात को जो भूल जाए क्या वो इज्जत के साथ जिएगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाए अल्लाह उसके सजदे भी उसके मुंह पे मारता है, कुदरत उसके सजदे भी कबूल नहीं करती। इसलिए पहली नसीहत ये है आज की इस महफिल की कि जो बहुत सारे गुनाह कर रहे हो, चूंकि गुनाहों की वजह से मुसीबत आती है तो इस गुनाह से भी बचने की कोशिश करो। और आज से पहले अगर माँ बाप को सताया, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, माँ बाप को उफ तक कहा, कुछ लोग तो माँ बाप को आंखें निकाल करके देखते हैं, कुछ लोग तो माँ बाप को गालियां भी देते हैं, कुछ लोग तो माँ बाप के साथ मुंह चलाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे घर में तुम्हारी जन्नत रखी हुई है, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत रखी हुई है, तुम्हारे घर में अल्लाह की
खुशियां रखी हुई है। अगर खुदा को खुश करना है, अपने माँ बाप को खुश करो, तुम्हारा खुदा तुमसे खुश हो जाएगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। क्या आपने ये नहीं सुना कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो दिखता नहीं, अल्लाह दिखता नहीं कि अल्लाह से बातें करें, लेकिन अल्लाह राजी है कि नाराज है, हमें कैसे पता चलेगा? अल्लाह खुश है या नाराज है, हमें कैसे पता चलेगा? मेरे करीम आका ने फरमाया, घर जा और तेरे माँ बाप का चेहरा देख, अगर माँ बाप राजी है अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। अल्लाह अकबर। ये है माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। इसलिए उन्हें खुश करते रहना, उनको राजी करते रहना। अल्लाह अकबर। फरमाया गया, माँ बाप बैठे हो तो उनके सामने आप अपने कंधों को भी ऊंचा नहीं कर सकते। माँ बाप बैठे हो, वो अगर वो कुछ बड़बड़ करें उनको उफ भी नहीं कर सकते। हाँ, आप कहेंगे कि मेरे माँ बाप बड़बड़ करते रहते हैं। यकीनन बुढ़ापे में आदमी बड़बड़ाता रहता है, एक बात को 50 बार बोलता है, लेकिन याद रखना यही तो आजमाइश है। माँ बाप का बुढ़ापा तेरे लिए जन्नत भी है, माँ बाप का बुढ़ापा तेरे लिए जहन्नम भी है। मुझे याद आता है, अगर माँ बाप एक से दूसरी बार सवाल करते तो बच्चों को, जवानों को गुस्सा आने लगता है। एक मर्तबा एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, फिर कहा, बेटा ये थोड़ी देर के बाद कहा ना ये है, समझ में नहीं आता। बूढ़े बाप की आंख में आंसू आ गए। फरमाया, बेटा दूसरी बार पूछा तू नाराज हो गया। अल्लाह की कसम मुझे तेरे बचपने का एक वाकया याद आता है। एक मर्तबा अपने घर के दरवाजे पर कौवा आके बैठा था और तूने मुझसे कमोबेश 100 से ज्यादा बार पूछा था, अब्बा ये क्या है? मैंने कहा था कौवा है। अब्बा ये क्या है? मैंने कहा था कौवा है। अब्बा ये क्या है? लेकिन हर बार जब मैं जवाब देता मेरा प्यार बढ़ता जाता, और मैंने दूसरी बार पूछा और तू नाराज हो गया मेरे बेटे। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, यकीनन है ऐसा कि हमारे और आपके बच्चे एक सवाल को कई मर्तबा नहीं करते, लेकिन क्या हमें कभी गुस्सा आता है? कैसे अजीब अजीब सवालात करते हैं ना बच्चे, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता। बच्चों के सवाल पर माँ बाप को गुस्सा नहीं आता, लेकिन माँ बाप के सवाल पर आजकल के नौजवान बच्चों को गुस्सा आता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर यही बात आपके समझ में आ गई तो मैं समझूंगा कि खड़कवानी आना मेरा कामयाब हो गया। याद रखना ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और वो तुम्हारी जहन्नम भी है। लोग कहते हैं मौलाना मेरे माँ बाप हमेशा बीमार रहते हैं। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ खुश नसीब है कि तेरे माँ बाप बीमार रहते हैं। लोग चौंक कर कहते हैं क्यों खुश नसीब हो कि वो बीमार रहते हैं। मैं कहता हूँ अगर वो बीमार रहते हैं तो तुझे खिदमत का मौका मिलता है, और माँ बाप की खिदमत सबके मुकद्दर में नहीं आती। माँ बाप की खिदमत सबके नसीबे में नहीं आती। माँ बाप की खिदमत सबके मुकद्दर में नहीं आती। नादान माँ बाप की खिदमत इंसान को ओवैसे करनी बनाती है। माँ बाप की खिदमत इंसान को अल्लाह का बरगजीदा बंदा बनाती है। इसलिए याद रखना, अगर माँ बाप बीमार हो तो कभी दुख मत करना, माँ बाप बीमार हो कभी अफसोस मत करना, इसलिए कि बीमारी अल्लाह ने उनको दी लेकिन तेरे लिए जन्नत के रास्ते खोल दिए। याद रखना, जब किसी बीमार के सराहने तुम खिदमत करते हो तो दिल से जो दुआएं निकलती है उसकी तासीर ही अलग है। और ये भी आपको बता दूं, किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी में छान करके देख लो, तहकीक करके देख लो, हर कामयाब इंसान के पीछे माँ की दुआ का असर नजर आता है। आप पढ़ो किसी भी इंसान की जिंदगी देखो, अगर आप पहले नंबर पे देखें, हालांकि अल्लाह के रसूल को किसी की दुआ की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपने नबी की जिंदगी को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी माँ उनके लिए दुआ कैसे कर रही। हालांकि मेरे नबी को किसी की दुआ की जरूरत